بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام اقبال ہے۔ آج جب میں پورے 3 سال بعد جیل سے رہا ہوا تو میں نے اپنے دوست کا شکریہ ادا کیا۔ یار تو نہ ہوتا تو آج میں جیل سے رہا نہ ہوتا۔ آج تیری ہی گواہی نے مجھے اس جیل سے رہا کروا دیا ہے، نہیں تو یہ سعودی قانون اتنی آسانی سے کسی مجرم کو اپنی گرفت سے آزاد نہیں کرتا۔ میں اپنے گھر آ چکا تھا، میں چاروں طرف سے گھر کو دیکھ رہا تھا اور اپنے ماضی کے حالات کو سوچنے لگا تھا۔ مجھے جیل میں ملے اس آدمی کی بات یاد آ گئی تھی۔ میں آج کتاب کے پنوں پر اپنی زندگی کی کہانی لکھنے جا رہا تھا کہ کیسے میں پاکستان سے سعودیہ آیا اور کیسے میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے آ گیا تھا۔ میں نے قلم اٹھایا اور اپنی کہانی لکھنی شروع کر دی تھی۔ میں ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوا تھا اور بچپن سے ہی ماں نے مجھے غربت میں رہ کر پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ ہم نے بہت برے حالات دیکھے تھے۔ میری عمر اس وقت 5 سال تھی جب میرے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا تھا اور مجھ سے چھوٹی 2 بہنیں اور تھیں۔ باپ کے مرنے کے بعد ماں کے لیے ہم بچے ہی جینے کا سہارا تھے۔ ماں اس وقت ہمیں محنت مزدوری کر کے پال رہی تھی۔ وہ بیچاری دن بھر لوگوں کے گھروں میں جا جا کر جھاڑو پوچھا کرتی، کپڑے دھوتی، برتن دھوتی اور گھر آ کر گھر کے کام کاج کرتی اور رات بھر سلائی کے کپڑے سیتی تھی۔ ہم بہت مجبور تھے۔ اس غریبی میں وہ نہ تو پڑھا سکتی تھی اور نہ ہی اچھے کپڑے، اچھے جوتے یا باقی بچوں کی طرح کوئی بھی ضرورت کا سامان دلا سکتی تھی۔ جو کچھ بھی محنت کر کے کما کر لاتی تھی اسی میں گھر کا گزر بسر چل جاتا تھا کہ ہم 2 وقت کی روٹی کھا لیتے تھے اور اسی طرح دن گزرتے جا رہے تھے۔ بہنیں بہت چھوٹی تھیں۔ سارا دن ماں کے پیچھے سے میں ان کا خیال رکھتا تھا اور جب ماں گھر لوٹ کر آتی تو میرے سر پر ہاتھ پھیر کر مجھے امید کی نظروں سے دیکھتی تھی اور شاباشی دیتی۔ وہ سوچتی بڑا ہو کر میں ہی ان کا سہارا بنوں گا اور اپنی بہنوں کی ذمہ داری بھی اپنے کندھوں پر لے سکوں گا اور شاید اس وقت گھر کے حالات بھی تھوڑے بہتر ہو جائیں گے۔ میں بھی بچپن سے ہی ماں کو اس طرح دن رات محنت کر کے کماتا دیکھتا تو دل میں ایک جذبہ جگاتا کہ بڑا ہو کر ماں کا سہارا بنوں گا اور پورے گھر کی ذمہ داری اکیلے ہی اٹھا لوں گا۔ اپنی بہنوں کو بھی ہر وہ خوشی دوں گا جس کے لیے بچپن سے وہ ترستی آئی ہیں، اور پھر ماں بھی تو بوڑھی ہو جائے گی، اس کی خوب خدمت کروں گا۔ میں اس طرح سے تھوڑا بڑا ہوا تو ایک مکینک کی دکان پر جا کر کام کرنے لگا تھا اور روز 200-300 کما کر لاتا اور ماں کے ہاتھ میں رکھ دیتا تھا اور وہ میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتی تھی، بڑا ہو کر تو بہت کامیاب بنے گا اور یہ میری تیرے لیے دل سے دعا ہے۔ ماں کی دعا سے میں بڑا بنا بھی، مگر بس قسمت کے کچھ برے حالات پھر سے سامنے آ گئے تھے۔ جب میری عمر 10 سال ہوئی تو میں تھوڑا زیادہ کمانے لگا تھا۔ میں ایک کی جگہ 2 دکانوں پر کام کرنے لگا تھا۔ صبح میں ایک دکان پر جاتا اور شام دوسری دکان پر جاتا تھا۔ جب گھر لوٹتا تو میری بہنیں ایک دوسرے سے ایک ہی چیز پر لڑ رہی ہوتی تھی، کبھی کپڑوں پر تو کبھی کسی چپل پر۔ میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ وہ لوگ کسی کے دیے پھٹے پرانے کپڑے اور پرانے جوتوں سے ہی گزارا کر لیتی تھیں۔ ان کی معصوم باتیں سن کر میرے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی تھی۔ کہتی، ایک بار ہمارا بھائی بڑا ہو جائے اور پھر کسی اچھی نوکری پر لگ جائے گا نا تو ہم لوگ دیکھنا پھر نئے نئے کپڑے اور جوتے لیں گے اور ڈھیر ساری خریداری اپنی ماں کے لیے بھی بازار سے کر کے آئیں گے۔ ہماری ماں بھی بیچاری سالوں سے ابا کے مرنے کے بعد سے بیچاری اپنے لیے کچھ خریداری نہیں کرتی، بلکہ ہمارے اوپر ہی سارے پیسے خرچ کرتی آئی ہے۔ یہ سب سن کر جب میں اپنی ماں پر نظر ڈالتا تھا مجھے بے حد افسوس ہوتا تھا۔ وہ بیچاری تھک ہار کر اب بستر سے لگی ہوئی تھی۔ وہ زیادہ بیمار رہنے لگی تھی۔ اب اس کی بوڑھی ہڈیوں میں وہ کمانے کی طاقت نہیں رہی تھی اور ساری ذمہ داری گھر کی اب میرے ہی کاندھوں پر تھی۔ دن اسی طرح غربت میں رو پیٹ کر گزر رہے تھے اور میری چھوٹی چھوٹی بہنیں عبادت کرتیں تو رو رو کے اللہ سے ماں کی صحت یابی کی دعائیں کرتی تھیں اور ساتھ ہی کہتی، اللہ ہمارے بھائی کی اچھی نوکری ہو جائے تو ہماری تمام مشکلات ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ میں 18 سال کا تھا جب اسی دکان پر کام کرتا تھا۔ وہاں ایک آدمی ہمیشہ اپنی گاڑی صحیح کروانے آتا تھا جو دکھنے میں تو کافی امیر ترین لگتا تھا اور بچپن سے مجھے وہاں کام کرتا دیکھ رہا تھا۔ وہ جب بھی آتا مجھے تھوڑے پیسے دے جاتا تھا اور آج بھی وہ میرے چہرے سے میری مجبوریاں صاف پڑ سکتا تھا۔ پھر اس نے مجھے کچھ ایسا بتایا کہ میرے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ گھر آیا تو دونوں بہنوں کو گلے لگا کر خوش ہونے لگا تھا۔ کہا، اللہ نے تمہاری سن لی ہے، مجھے اچھی نوکری مل گئی ہے۔ لیکن جو بوڑھی اور بیمار ماں پر نظر پڑی تو وہیں بیٹھ کر آنسو بہانے لگا کہ دل تو نہیں چاہ رہا ماں کو ایسی حالت میں چھوڑ کے کیسے جاؤں گا۔ پھر بہنوں نے سمجھایا، بھائی آپ کو یہ موقع بالکل نہیں گنوانا چاہیے، کیونکہ خوش قسمتی سے یہ موقع جو ملا ہے، اور پھر ماں کے علاج کے لیے بھی تو سخت پیسوں کی ضرورت ہے۔ میں اس آدمی سے میل جول کر کے سعودیہ جانے کی تیاری کرنے لگا تھا اور بہنوں کے حوالے گھر اور اپنی بیمار ماں کو چھوڑ کر آیا تھا۔
कुछ दिन तो मैं उसी आदमी के साथ उसके ही घर पे रहने लगा था। वो आदमी वाकई बहुत अमीर तरीन था। उसने मुझे यहाँ लाकर बहुत एहसान किया था, मगर मैं जानता था कि मैं ना तो पढ़ा लिखा हूँ और ना ही कोई हुनर मुझे आता है कि यहाँ अच्छी नौकरी कर सकूँ। बस उस आदमी से सुना था कि यहाँ अक्सर शेख लोगों को अपने कामों के लिए भरोसे का आदमी चाहिए होता है। उस आदमी ने मुझे अपने एक शेख सेठ के पास काम पर रखवा दिया था। मैं यहाँ सऊदीया में ट्रक चलाने लगा था और उनका माल अपने ट्रक में लोड करके सामान इधर उधर ले जाता था। इसी तरह मुझे थोड़ी अच्छी तनख्वाह मिल जाती थी और मैं वहीं उनके सर्वेंट क्वार्टर में रहने लगा था। मैंने इसी तरह मेहनत मजदूरी करके उनके छोटे मोटे काम करके अपना गुजर बसर करने लगा और थोड़े पैसे बहनों को भेज देता था, जिससे वो घर भी चलाती थी और माँ का इलाज भी। पर अब भी ये पैसे बहुत कम थे और मुझमें यहाँ आकर आगे बढ़ने की लगन और जुस्तजू पैदा हो गई थी। मैं आंखें बंद करता जब रात सोने के लिए थका हारा बिस्तर पर आता था तो मुझे एक तरफ वो मासूम बहनों की ख्वाहिशें सोने न देती थी और दूसरी ओर बीमार माँ का चेहरा जो मुझे उम्मीदों भरी नजरों से देखा करती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने आगे बढ़ना शुरू किया और मुझे एक बहुत ही बड़े बंगले में बुलवाया और उन शेखों ने भरोसे के लायक आदमी समझकर मुझे अपने सारे कामों की जिम्मेदारी दे दी थी। मैं तो खुशी से फूले नहीं समा रहा था, क्योंकि इतनी तनख्वाह से मेरा घर बार और माँ का इलाज सब अच्छा चलने लगा था। फिर अल्लाह ने मुझे दिन रात मेहनत का ऐसा सिला दिया कि मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। सेठ ने मुझे मेरे काम से खुश होकर अपने एक बहुत बड़े होटल की जिम्मेदारी दे दी थी और इतना ही नहीं बल्कि मुझे सारा काम पहले सिखाया और सारी जिम्मेदारी मुझे सौंप कर खुद अमरीका चले गए थे। मेहनत से काम करके कमाते कमाते मैं 1 साल के अरसे में ही उस पूरे होटल का मालिक बन गया था। उन्होंने मुझे ये होटल देकर मुझ पर एहसान किया था कि मैं सारी जिंदगी उनका ये एहसान नहीं उतार सकता था। अब मैं इस पूरे होटल का एक अकेला मालिक था और उसे अपनी पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी से चला रहा था। उधर पाकिस्तान में भी मेरे घर के हालात बदल चुके थे और साथ में माँ का इलाज भी अच्छा चल रहा था। और इसी तरह देखते देखते मैंने दिन रात मेहनत मशक्कत करके इस होटल को 3 साल में उन ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया था जो एक आम आदमी के बस की बात हरगिज नहीं थी। इसी साल के अरसे में शेखों के बीच रह रहकर मैंने अपना रहन सहन तौर तरीका शेखों की तरह बना लिया था। अब मैंने खुद को पूरा बदल लिया था और एक बहुत बड़ा अमीर तरीन शेख बन चुका था, क्योंकि ये बिजनेस के लिए भी इंतहाई ज़रूरी था। यहाँ शेखों की बहुत अहमियत थी और इसी बीच एक दिन अपने बिजनेस के सिलसिले में ही मेरी मुलाकात एक अरबी औरत से हुई, जबकि वो अच्छी तरह जानती थी कि मैं ज़ाती शेख नहीं हूँ। फिर भी उसने मुझे खुद ही शादी की ऑफ़र दी थी और मेरे लिए इससे अच्छा मौका नहीं था कि अपने बिजनेस को आगे से आगे बढ़ा सकूं। लेकिन वो अरबी औरत मुझसे उम्र में काफ़ी बड़ी थी और साथ में वो बुर्का पहने रखती थी। उसकी आंखों से, आवाज़ से वो मुझे जानी पहचानी लग रही थी। लेकिन कहते हैं ना, पैसे से पैसा बनाया जाता है, और वो खुद भी इकलौती बहुत बड़े बिजनेस की मालिक थी। और ऐसी औरतें अपने लिए खूब से खूब की तलाश में होती हैं। लेकिन न जाने क्यों उसने मुझे ही शादी के लिए चुना था। मैंने उसे अभी जवाब नहीं दिया था और सारी रात इसी बारे में सोचता रहा। बहरहाल मैंने उसे शादी के लिए हाँ कर दी थी और उससे मेरा सादगी से निकाह हो गया था। शादी की रात वो कहने लगी, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैंने कहा, नहीं तो। कहने लगी, छोड़ो, फिर कभी फुर्सत मिली तो हम इस बारे में ज़रूर चर्चा करेंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये मुझसे क्या कहना चाहती है और आखिर मुझे उसने क्यों कहा था कि पहचाना नहीं। मैंने अपने और उसके बिजनेस को एक कर लिया था और अब हम दोनों यहाँ सऊदीया में बहुत पैसा कमा रहे थे। मगर एक रात उसने बंगले पर बहुत बड़ी एक पार्टी रखी। कहने लगी, शादी की खुशी में है, और उसकी बहुत सारी दोस्त भी, जो सब की सब अरबी लंबी चौड़ी औरतें थी। सभी ने बुर्के पहने हुए थे, मगर मैं तो दंग ही रह गया था जब उन्होंने बुर्के उतार उतार कर उस शानदार पार्टी को खूब मज़े ले लेकर एंजॉय किया। मगर एक चीज़ मुझे बहुत अजीब लगी थी। मेरी बीवी ने मुझसे कुछ पेपर पर दस्तखत करवाए थे जिन पर अरबी में लिखा हुआ था, और उसी रात मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ। मेरे ऊपर तो क़यामत ही टूट पड़ी थी। मैं रात कब कहाँ कैसे बेहोश हुआ मुझे तो याद ही नहीं रहा। हाँ, इतना ज़रूर याद था कि मैंने तो शराब को हाथ भी नहीं लगाया था और साथ में सिर्फ जूस ही पी रहा था। फिर कैसे जब सुबह होश आया तो मेरे बंगले पर एक हंगामा खड़ा था और एक अरबी औरत मेरे ऊपर रात के झूठे झूठे इल्ज़ामात लगाने लगी थी, जिस पर मेरी बीवी एक तरफ खड़ी शर्म से नजरें चुरा रही थी और मैं इस तरह सबके बीच अपने ही बंगले पर सारे नौकरों के सामने अपनी इज्जत की धज्जियां उड़ते देख रहा था। मैं सफाई में एक अल्फाज भी ना कह सका था, क्योंकि मेरी पहली बीवी ने उसी वक्त सबके सामने काजी को बुलाया और मेरा उस अरबी औरत से निकाह करवा दिया था। मेरा ये दूसरा निकाह। मैं तो बहुत ही हैरत ज़दा था। मुझे लगा था कि मेरी बीवी मुझ पर गुस्सा करेगी और शायद मुझसे तलाक मांगेगी,
मगर यहाँ तो उसने खुद ही अपनी सौतन को लाना पसंद कर लिया था, और जब भी मैं उससे इस बारे में कुछ पूछता तो कहती, ये ही आपकी बेवफाई की सज़ा है, और ऐसा करना क्यों ज़रूरी था ये मैं आपको फुर्सत से कभी बताऊंगी। मैं उसके आगे कुछ भी नहीं कह पाता था, क्योंकि उससे शादी के बाद घर में और बिजनेस में सिर्फ उसी की चलती थी। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ, मैं फिर से अपनी बीवी की एक अनजान हरकत पर हैरत ज़दा हो गया था। मुझे एक दिन वो खुशी खुशी शॉपिंग के लिए मॉल ले गई। जब भी उसने रास्ते में कार रोककर एक आदमी से कुछ बातचीत करने लगी थी, उस आदमी को देखकर मुझे याद आया कि ये तो वही आदमी है जो मुझे सबसे पहले नौकरी के लिए सऊदीया लाया था। मगर ये आदमी यहाँ इस वक्त, और वो भी मेरी बीवी के साथ। थोड़ी ही देर में वो कार में आकर बैठी तो मैंने सवालिया नजरों से उससे पूछा कि तुम इस आदमी को कैसे जानती हो, वो कौन है? वो फिर मुस्कुरा दी और कहने लगी, पुरानी जान पहचान है, फुर्सत से बताऊंगी। और इतनी देर में उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। जब से मैं उस औरत के निकाह में आया था, मुझे कुछ नागवार सी हरकतें महसूस होने लगी थी। पता नहीं उसका क्या मकसद था जो ये मुझे किसी सवाल का जवाब दिए बगैर ही कहती थी, फुर्सत से बताऊंगी। फिर थोड़ी ही देर में कहने लगी, भूख लगी है। मैंने कहा, हाँ लगी तो है, लेकिन तुम अब ये मत कहना फुर्सत से खाएंगे। वो मुस्कुराने लगी और अपने बुर्के से 2 खजूरें निकाली और मुझे कहने लगी, खा लो ये खजूरें। मुझे समझ नहीं आता था कि मेरी दोनों बीवियां अपने बुर्के में ये खजूरें क्यों रखती थी। जब भी पूछता तो ये हंस पड़ती थी और कहती, ये एक ऐसा राज है जो हम अरबी औरतों के बुर्के में रखी खजूरों में छुपा है। शायद मैंने सुन रखा था कि ऐसा करने से उन अरबी औरतों के पास पैसा ही पैसा आता है, क्योंकि मैं जिस सेठ के पास काम करता था उसकी बीवी भी अक्सर यही बुर्के में खजूरें रखती थी, और उनके नौकर इस राज के बारे में बातें किया करते थे और साथ में अरबी औरतों के 2 ऐसे राज का इंकशाफ करते थे जिससे मैं अभी बिल्कुल ही अनजान था, क्योंकि कभी मेरा उनसे वास्ता ही ना पड़ा था। शायद अब पढ़ने वाला था, क्योंकि मैं एक नहीं 2 अरबी औरतों का शौहर जो था। मैं ये सब सोच ही रहा था। इतनी देर में उसने गाड़ी रोकी और मेरा हाथ पकड़कर मॉल में ले गई थी और बहुत सारी शॉपिंग करने लगी। मुझे हैरत का झटका लगा जब वो खुद 40 साल की होकर पैदाइशी बच्चों के छोटे छोटे कपड़े, जूते और झूले वगैरह ये सब सामान ले रही थी। मैंने फिर से उससे सवालिया नजरों से पूछते हुए कहा कि ये क्या कर रही हो, खैरियत? मैं घबराने लगा कि कहीं ये इस उम्र में। वो कहने लगी, मेरी दूसरी बीवी फरजाना उम्मीद से है और हम उसी के लिए शॉपिंग कर रहे हैं। मैं चौंक पड़ा था, क्योंकि मैं तो कभी फरजाना को निकाह के बाद से ही, वो तो हमेशा अपने कमरे में पूरा दिन बंद रहती थी और ये औरत मुझे उससे मिलने तो दूर की बात उसे देखने भी ना देती। फिर ये सब, कहीं ये इसकी आड़ में कोई झूठ तो नहीं, कहीं ये बच्चा उसका तो नहीं, क्योंकि मैंने तो उस औरत को उम्र में बड़ा समझकर उसके साथ कोई बीवी के ताल्लुकात नहीं रखे, और ये अभी कुछ देर पहले उस आदमी से भी मिल रही थी। कहीं इसका और उसका कोई ताल्लुक तो नहीं। मेरे जहन में हजारों सवालात आने लगे थे। हम शॉपिंग से घर लौटकर आ चुके थे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर दोनों औरतें चाहती क्या हैं। और फिर नई मुसीबत मेरे सर आ गई थी। एक रोज़ मैं काम से बाहर गया हुआ था, तभी अचानक मुझे घर से कॉल आई और रेहाना, मेरी पहली बीवी, ने मुझे जल्दी से घर बुलाया। मैं डरते घबराते फौरन से निकला कि कहीं फरजाना की तबीयत तो अचानक ख़राब नहीं हो गई। मगर घर पर हालात बिल्कुल इसके बरक्स थे। एक औरत बुरके में बैठी थी और साथ में एक बूढ़ा सा शेख बैठा हुआ था। रेहाना ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे वहां जाकर बिठा दिया था और फरजाना भी साथ में घूंघट डाले बैठी थी। रेहाना ने जब उस बूढ़े शख्स से कहा कि तो हाँ शुरू करें निकाह, मेरे तो पैरों तले जमीन ही निकल गई थी। मुझे लगा ये फरजाना का निकाह मेरे होते हुए इस बूढ़े से, पर झटका तो तब लगा जब उस बूढ़े ने निकाह पढ़ाते हुए उस बैठी हुई औरत के नाम के साथ मेरा नाम लिया। मैं तो चौंक कर वहां से फौरन ही उठ खड़ा हुआ था और कहने लगा, ये क्या बेहुदा हरकत है रेहाना, तुम मेरा तीसरा। इससे पहले मैं कुछ कहता उसने मेरा हाथ पकड़कर निकाह के लिए जोर जबरदस्ती करके बिठा दिया और कान में कहने लगी, इस वक्त कुछ ना कहो, बस निकाह के लिए हाँ कर दो, नहीं तो मेरी और फरजाना की जान को खतरा है, हम दोनों ही मारे जाएंगे। मैंने चुपचाप निकाह के लिए हाँ कर दी थी और कुछ ही देर में मेरा निकाह उस बुरके में छुपी औरत से करवा दिया गया था। मेरी तो उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था, ये सब मेरे घर में मेरे साथ क्या हो रहा था। रात मैं अपने कमरे में सर पकड़े बैठा था और अपने उस बुरे दिन को याद कर रहा था जब मैंने अपनी पहली बीवी रेहाना से निकाह किया था, और उसके बाद मेरी जिंदगी में फरजाना आई और अब नई नाजिश। आखिर मेरी बीवी मेरे साथ ये क्या खेल खेल रही थी, जिसने खुद अपने शौहर का जोर जबरदस्ती करके दूसरा निकाह कराकर अपनी दूसरी सौतन को घर ले आई थी, और उस दिन खुद ही अपने सौतेले आने वाले बच्चे के लिए शॉपिंग कर रही थी, और आज मुझे उसने नए निकाह के रिश्ते में फंसा दिया था। न जाने ये सब क्या हो रहा था। एक रात मैं गहरी नींद सोया हुआ था, अचानक मुझे कुछ बराबर के कमरे से शोर शराबे की आवाज़ें आने लगी, और जब मैंने छुप कर देखा तो रेहाना और नाजिश
दोनों ही एक सफ़ेद घोड़ा लिए कमरे में खड़ी थीं और फरजाना सामने ही डरी सहमी बैठी थी। मेरी तो आंखें ही फटी रह गई थी। अब रोज़ का मामूल था। आधी रात को फरजाना के कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती थी और मैं झांक कर देखता तो रेहाना और नाजिश सफ़ेद घोड़ा लिए उसके सामने खड़ी होती थी और फरजाना सामने ही बैठी होती थी। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि रेहाना और नाजिश एक साथ इस फरजाना पर न जाने क्या जुल्म ढा रही थी, जो रोज़ रात उस घोड़े को लेकर उसके कमरे में चली जाती थी और वो चीखती चिल्लाती थी। एक रोज़ मेरे पास मेरी बहनों का फ़ोन आया और कहने लगी, माँ ने हमारी शादी कर दी थी, मगर अफसोस भाई आप तो वहाँ जाकर वहीं के हो गए और वापस पलट के देखना भी गवारा नहीं किया। ये सुनकर मैं वाकई शर्मिंदा होने लगा था कि पैसा कमाने की लालच में मैं यहाँ किस झमेले में फंस गया था कि अपनी माँ और बहनों को भूल ही चुका था। मेरे मुंह से निकला, और माँ वो कैसी है? कहने लगी, कौन सी? आज याद आ रही है आपको उनकी? वो तो 1 साल पहले ही दुनिया से रुखसत हो गई हैं और हमने बहुत इत्तला देनी चाहिए पर आपसे राब्ता ही ना हो सका था। ये सुनकर मैं तो वहीं चकरा कर बैठ गया था। दौलत के नशे में चूर होता गया और यहाँ आकर इस कैद में फंस गया। मैं अपनी बहनों को किस मुंह से बताता कि मैं 3 बीवियों के झमेले में बहुत बुरा फंस चुका हूँ और यहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल हो गया था। बहनों से फ़ोन पर बात करते करते मैं रोने लगा था कॉल कट गई थी और थोड़ी ही देर में वहाँ नाजिश आ गई थी। मुझसे रोने की वजह पूछी तो मैंने अपनी माँ का बताया। फिर मैंने उससे बातों ही बातों में फरजाना के बारे में पूछा कि तुम लोग रोज़ रात को उसके साथ ऐसा क्या करते हो? कहने लगी, ये एक अरबी औरतों का पुराना टोना है और ये भी एक राज है। जिस तरह हम अपने पास खजूरें रखती हैं और ऐसा करने से हम 4 तवाना भी रहती हैं और कभी पैसों की कोई कमी नहीं होती और पैसा आता रहता है, जिस तरह तुम्हारे, इसी तरह ये भी एक टोना है जो हम सालों से करती आई हैं और ये सब आपके आने वाले बच्चे के लिए बेहद ज़रूरी है। मैं सर पकड़े बैठा रहा। एक तरफ माँ की मौत की खबर, वो बेचारी मेरे से उम्मीदें लगाए इस दुनिया से चली गई और शायद यही मेरी सज़ा थी। मैं पैसों की लालच में माँ को, बहनों को, अपने घर की जिम्मेदारी को भूल गया था और शायद ये अजाब मुझ पर इस तरह नाजिल हो रहा था। इन बीवियों की अजीब हरकतों की सूरत में नाजिश जाते वक्त कमरे में जूस रख गई थी। मैंने वो जूस पिया तो मुझे थोड़ा सुकून महसूस होने लगा और कुछ ही देर में मैं आराम से सो गया था और जब सुबह सवेरे मेरी आँख खुली तो मेरा सर भारी भारी होने लगा था। जब मैंने अपना हाथ उठाकर सर पर रखा और नोट किया तो मेरे अंगूठे पर सियाही के निशानात थे। मैं घबराने लगा था। ये सब क्या था? मेरी तो समझ से बाहर था। फिर हॉल में गया तो मेरी बीवी रेहाना कुछ वकील के साथ बैठकर बातें कर रही थी और वकील के साथ बैठा वही आदमी था जिससे रेहाना उस दिन मॉल जाते वक्त मिली थी और उसके हाथ में वही पेपर थे जो उस दिन थे। वो आदमी जो मुझे यहाँ सऊदीया लाया था, फिर अचानक वो मुझे अपने सेठ के पास भेजकर गायब हो गया था और अब ये फिर से यहाँ मेरी ही बीवी के साथ मेलजोल में। मैं छुपकर सब सुनने की कोशिश कर रहा था मगर ये लोग अरबी में गुफ्तगू कर रहे थे और कुछ ही देर में फरजाना आ गई थी जिसे नाजिश छुपा कर सबके सामने से यहाँ से ले गई थी और इसी कमरे में छोड़ आई थी जहाँ पहले से वो सफ़ेद घोड़ा मौजूद था। मुझे बहुत ही हैरत थी कि यहाँ ये सब जो कुछ हो रहा था वो क्या था और क्यों। अगर मैं उस आदमी से मिलकर पूछने की कोशिश करता तो कहीं मैं किसी मुसीबत में ना फंस जाता, मगर फिर मुझे अपने ही सेठ की बात याद आ गई थी कि यहाँ सब गोलमाल है। तुम नहीं जानते कि अरबी औरतें कैसे मर्दों को फंसाकर अपना मतलब पूरा करती हैं और मर्दों को पता भी नहीं चलता। मैं सोच में पड़ गया था कि कहीं मैंने इन तीनों से शादी करके कोई गलती तो नहीं कर दी थी, मगर अगर ऐसा था तो मुझे भी इन औरतों के वो 3 राज जानने थे जिसे जानकर शायद मैं बाकी मर्दों के लिए आसानी कर सकता था जो इन अरबी औरतों के राज नहीं जानते थे। एक तो मैं जान गया था कि ये अपने बुरके में खजूरें रखती थी और उससे उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी और दूसरे का ताल्लुक ज़रूर फरजाना और उस घोड़े से जुड़ा था और तीसरे से मैं बिल्कुल ही बेखबर था। एक रोज़ मैंने उन तीनों के उस कमरे में जाने से पहले ही फरजाना के कमरे में खुद को अलमारी के पीछे छुपा लिया था और देखते ही देखते नाजिश फरजाना को घसीट कर यहाँ ले आई थी और साथ में रेहाना उसके पास घोड़े को लाने लगी। कुछ ही देर में घोड़े ने जो हरकत करी, मेरी तो आंखें ही फटी रह गई थी। ये लोग कैसे अजीब लोग हैं और ये सब सिर्फ इसलिए कि आने वाला बच्चा। मैं इस राज को भी जान गया था और नाजिश और रेहाना की बातें सुन चुका था और अब मुझे कैसे भी करके यहाँ से भाग जाना था क्योंकि उनकी बातों से अंदाज़ा लगा लिया था कि यहाँ कुछ तो बहुत बड़ी साजिश हो रही है जिसमें मुझे फंसाया जा रहा था। अब बस मुझे उस आदमी से मिलना था जो मुझे यहाँ तक लाया था। शायद वही मेरी कुछ मदद कर सकता था। मैंने एक दिन फिर से रेहाना को कुछ पेपर के साथ उस आदमी से मुलाकात करते हुए देखा था और मैंने छुपकर उस आदमी का पीछा किया। वो किसी वकील के पास जाकर कुछ बातचीत कर रहा था। मैंने उस आदमी को पकड़ लिया था क्योंकि उस वकील और आदमी की बातें मैं सुन चुका था। मैंने उसका गिरेबान पकड़कर उसके साथ मारपीट शुरू कर दी थी और कहा, मैं तेरा सच जान गया हूँ,
تو کتنا کمبخت آدمی ہے، تیری وجہ سے میں اپنا گھر بار اور سب کچھ چھوڑ کر یہاں آیا تھا، اور میری بوڑھی بیمار ماں وہاں میرے لوٹنے کا انتظار کرتے کرتے مر گئی، اور تو نے جان کر مجھ جیسے ان پڑھ گوار کو یہاں لا کر پھنسا دیا اور ان عربی عورتوں سے میرا پالا لڑوایا۔ یہ سب کرنے کے تجھے کتنے پیسے ملے؟ بول بول مجھے، میں تیرا ایک ایک پائی کا تجھے آج وہ قرضہ چکا سکتا ہوں۔ میرے پاس آج اتنا پیسہ ہے، میں ایک بہت بڑے ہوٹل کا مالک ہوں۔ وہ آدمی میری بات سن کر ہنس پڑا اور کہنے لگا، کون سے پیسے، کون سا ہوٹل؟ کچھ نہیں ہے تیرے پاس، جا کر لے جو ہو سکتا ہے۔ میں یہ سن کر صدمے میں آ گیا تھا اور خود کو سنبھالے سے بھی نہیں سنبھال سکتا تھا۔ میرے تو پیروں تلے زمین ہی نکل گئی تھی۔ ان عربی عورتوں کے جھانسے میں آ کر میں اپنا کمایا سب کچھ کھو چکا تھا، اور وہ عورتیں، میں اس سے اپنے ہر سوال کا جواب لینا چاہتا تھا۔ آخر انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا تھا؟ میں گھر پہنچا تو تینوں مزے سے بیٹھی اپنے برقعے سے نکال کر کھجوریں کھا رہی تھیں اور مجھے گھور رہی تھیں۔ میں ان پر غصے سے برس پڑا تھا۔ میں نے کہا، تم لوگوں نے مجھ جیسے پاکستانی ان پڑھ اور لاچار مجبور کے ساتھ یہ سب کیوں کیا؟ تم لوگوں کی وجہ سے میں اپنی مری ماں کو نہ دیکھ سکا اور اپنے گھر بھی نہ لوٹ سکا۔ وہ کہنے لگی، تم پاکستانی آخر ہوتے ہی بے وقوف ہو، خاص کر غریب لوگ جو آرام سے باہر کی نوکری کی لالچ میں اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہاں آ جاتے ہیں، اور ہم عربی عورتوں کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ میں نے کہا، چلو مجھے اپنا تو سمجھ آتا ہے، مگر یہ فرزانہ آخر اس نے کیا بگاڑا تھا؟ یہ بھی تو تم جیسی ایک عربی عورت ہے، اسے کیوں اس گھوڑے کے ساتھ وہ فضول سی حرکت؟ ریحانہ کہنے لگی، او بے وقوف، وہ ہمارا ایک ٹونا ہے، جیسے یہ کھجوریں رکھنے سے ہمارے پاس پیسہ ہی پیسہ آتا ہے، اسی طرح گھوڑے سے حاملہ عورتوں کا پیٹ چٹانے سے بچہ صحت مند تندرست پیدا ہوتا ہے، اور ہمارا وہ تیسرا راز جو ابھی کچھ دیر بعد ہی تو اپنے آپ جان جائے گا۔ اور سن، ہم یہاں تجھے کیوں اس آدمی کے ذریعے لائے تھے؟ ہمیں ایک پاکستانی اور ان پڑھ غریب بے وقوف مرد کی تلاش تھی جو آسانی سے ہمارے کام آ سکتا تھا، اور ٹھیک ویسا ہی ہوا۔ وہ آدمی جو تجھے یہاں ہمارے کہنے پر ہی لایا تھا، اور تو پیسوں کی لالچ میں چلا آیا۔ ہم تینوں ہی اس شیخ کی بیویاں ہیں جس تک تجھے اس آدمی نے اپنا سیٹ کہہ کر پہنچایا تھا۔ وہ آدمی ہمارے ساتھ ملا ہوا تھا کیونکہ اس شیخ کی ہم تینوں ہی بیویاں تھیں۔ اس شیخ نے ہم سے نکاح کر کر کے ہماری تمام دولت ہڑپ لی تھی، اور ہمارے ماں باپ کا وہ ہوٹل، وہ سارا بزنس شادی کے بعد اپنے نام کر لیا تھا، اور ہمیں ہر حال میں وہ سب واپس لینا تھا۔ اس لیے ہم نے یہ کھیل رچا، اور ہم تینوں عربی عورتیں بہنیں ہیں، اور فرزانہ اس کی دماغی حالت ٹھیک نہیں۔ یہ اس شیخ کے بارے میں سب کچھ جان چکی تھی، اور اس کی جان کو شیخ نے نہیں بخشا۔ جب اسے اس کی حرکت کا پتہ چلا کہ یہ جان گئی ہے کہ وہ ساری دولت اور وہ ہوٹل اپنے نام کرنے والا ہے، تو اس کی جان لینے کی کوشش کی اور اس کا ایکسیڈنٹ کروا دیا تھا۔ اس کا بچہ تو بچ گیا تھا، مگر یہ دماغی چوٹ کی وجہ سے پاگل ہو گئی تھی، اور اس لیے اس کا نکاح جب میں نے تم سے اس کھیل کے مطابق کروایا کہ پارٹی کی رات ایسا غلط ہوا، جبکہ تم تو نیند کی دوا کے نشے میں ساری رات سوئے رہے، اور صبح میں نے جان کر وہ کھیل کھیلا اور اسے تمہاری بیوی بنایا۔ مجھے اب سمجھ آ رہا تھا کہ وہ کبھی برقعے میں گھونگھٹ ڈال کر کمرے میں بند رہتی تھی، اور ریحانہ نے مجھے اس سے کبھی ملنے ہی نہیں دیا، اور وہ بچہ اس شیخ کا تھا، یعنی یہ تینوں ہی شیخ کی بیویاں تھیں اور بہنیں بھی۔ شیخ نے زور زبردستی کر کے ان تینوں سے ہی دولت اور وہ ہوٹل ہڑپنے کے لیے شادی کی تھی اور انہیں طلاق دے دی تھی، اور اس طرح ان لوگوں نے جب جانا کہ وہ شیخ سب کچھ میرے حوالے کر کے جا چکا تھا، تو ان تینوں بہنوں نے میرے سے نکاح کر کے مجھے پاگل بنا بنا کر کبھی کاغذات پر دستخط لیے تو کبھی سوتے ہوئے میرے انگوٹھے کے نشانات، اور اس طرح ساری دولت اور وہ ہوٹل واپس اپنے نام کر لیا تھا۔ اور ساتھ میں کچھ ہی دیر میں جب پولیس آئی تو ان لوگوں نے مجھ پر جھوٹے الزامات لگائے کہ ہم تینوں بہنوں سے اس آدمی نے زور زبردستی نکاح کیا ہے، اور ساتھ میں اس قاضی کو بھی پیش کیا جس نے جھوٹی گواہی دی، جس نے میرے تینوں نکاح کروائے تھے، اور مجھے اسی وقت سعودی حکومت کا قانون گرفتار کر کے لے جا چکا تھا، اور میں جھوٹے الزامات میں جیل میں سلاخوں کے پیچھے آ گیا تھا۔ میں یہ تیسرا راز جان گیا تھا کہ یہ اپنے شوہر کو کسی بھی الزام میں جیل بھیج سکتی ہیں، یہ اتنی پیسوں کی طاقت رکھتی ہیں۔ میرے پاس اب نہ دولت تھی اور نہ کچھ، بس ماں کی اور بہنوں کی شاید دل کی آہ لگی مجھے، یہاں تک کہ دولت کے نشے میں سب کچھ بھول گیا تھا۔ اور جب 3 سال بعد مجھے اس نے چھڑوایا، وہ آدمی اور کوئی نہیں، وہی آدمی تھا جو مجھے یہاں لایا تھا۔ ان عربی عورتوں کے کہنے پر اسے بھی اپنے کیے کی سزا اپنی بیٹی کی بیماری کی صورت میں مل گئی تھی۔ اس نے اپنی غلطی سدھارنے کے لیے مجھے جیل سے رہا کروا دیا تھا۔ میں نے اپنی کہانی لکھ کر یہ کتاب شائع کر دی تھی تاکہ کوئی بھی پاکستانی مرد ان عربی عورتوں کے 3 شرمناک راز جان لے گا۔ لالچ بری بلا ہے، انسان اور سے اور زیادہ کی تلاش میں اپنا سب کچھ کھو دیتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔